કરી દેવામાં આવ્યો છે। 2 કોન્સ્ટેબલને દંડાથી માર મારવામાં આવ્યો હતો તેમજ પોલીસ પર હુમલો છતાં મામલો દબાવી દેવામાં આવ્યો। હુમલો કરનાર રાંદેર વિસ્તારનો માથાભારે શખ્સ છે। વિડીયો વાયરલ થયા બાદ પોલીસે ગુનો નોંધ્યો। આરોપીને ઝડપવા સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ વડોદરા પહોંચી અને 2 હુમલાખોરોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। 2 આરોપી હજુ પણ ફરાર છે। સંવાદદાતા કીર્તેશ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। કીર્તેશ, પોલીસ પર હુમલો કરવાની આ ઘટના, શું અપડેટ તેને લઈને? બિલકુલ, સલાબતપુરા વિસ્તારની આ ઘટના છે કે જ્યાં 2 પોલીસ કર્મચારીઓ પૂંજાભાઈ અને ભૂપેન્દ્ર નામના કોન્સ્ટેબલો પેટ્રોલિંગમાં હતા। त्या દરમિયાન 2 આરોપીઓની શોધખોળ કરી રહ્યા હતા। 2 આરોપીઓ દેખાઈ જતા પોલીસ દ્વારા તેમનો પીછો કરવામાં આવી રહ્યો હતો। ત્યારે આ આરોપીઓ સુરત અટવા પોલીસની હદમાં પહોંચ્યા હતા। જોકે આરોપી સાથે અન્ય 2 આરોપી, કુલ 4 આરોપીઓ હતા અને પોલીસને જોતા તેઓ પોલીસ ઉપર તૂટી પડ્યા હતા। પોલીસ ઉપર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો અને ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા હતા। જોકે સમગ્ર મામલો સામે નતો આવ્યો, પણ જ્યારે સીસીટીવી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા ત્યારબાદ પોલીસે તાત્કાલિક ગુનો દાખલ કરી પોલીસ પર હુમલો કરતા આરોપીને શોધખોળ કરવા માટે લોકલ પોલીસ સાથે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ જોડાઈ હતી અને મોડી રાત્રે 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। જોકે હજુ પણ 2 આરોપીઓ પોલીસ પકડથી દૂર છે। ખાસ કરીને રાંદેર વિસ્તાર કે જ્યાં ડ્રગ્સનું સૌથી મોટું નેટવર્ક ચાલે છે અને ડ્રગ્સ સાથે જોડાયેલા આરોપીઓની ઇન્ફોર્મેશન મળતા સલાબતપુરા પોલીસ આરોપીઓને શોધવા લાગી હતી અને કહી શકાય કે સલાબતપુરા પોલીસ આરોપી સુધી પહોંચી ગઈ હતી, પણ તેમને ખબર નથી કે આરોપી સાથે અન્ય 3 આરોપી છે અને જોતજોતામાં આરોપીઓએ પોલીસ પર હુમલો કરી દીધો હતો। કીર્તેશ, અહીંયા સવાલ એ પણ થઈ રહ્યો છે કે વિડીયો સામે આવ્યો ત્યારબાદ કાર્યવાહી કરવામાં આવી, પરંતુ અહીંયા હુમલો તો પોલીસના કર્મચારીઓ ઉપર જ થયો હતો, તો ત્યારે શા માટે કાર્યવાહી ન થઈ? શું મામલો દબાવવાનો પ્રયાસ હતો? બિલકુલ, સૂત્રોની વાત માનીએ તો પોલીસ પર હુમલો કરનાર વ્યક્તિઓ ગુનેગાર હતા અને કહી શકાય કે તેઓ ગંભીર ગુનાના આરોપી હોવાને લઈને પોલીસે પ્રથમ આરોપીઓને પકડવા માટેની કામગીરી શરૂ કરી હતી અને જે કર્મચારીઓ છે તેમને સારવાર અર્થે ખસેડ્યા હતા, કારણ કે આરોપી પકડાઈ ગયા પછી પાછળથી ગુનો દાખલ થઈ શકે તેવું સુરત પોલીસનું માનવું છે। પણ જે રીતે વિડીયો વાયરલ થયા એટલે પોલીસે તાત્કાલિક ગુનો દાખલ કરી દીધો, પણ પોલીસની પ્રાયોરિટી આરોપીઓને પકડી પાડવાનો હતો, જેને લઈને તેઓ ગંભીર પ્રકારના અન્ય કોઈ ગુના ન આચરે, કારણ કે જે વ્યક્તિઓ પોલીસ પર હુમલો કરી શકતા હોય તે આરોપીઓ કઈ પણ હદે જઈ શકતા હોય। જી કીર્તેશ, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર। ન્યૂઝ 18ના અનેક સવાલ કે આખરે આ જે આરોપીઓ છે તેમના પર કેવી રીતે હવે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે? શું તેમનું સરઘસ કાઢવામાં આવશે કે કેમ? आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना। अपनी मेहनत से तो दुनिया को जीत ले। एक पर्सनल सवाल पूछूं मैं आप सभी से, क्या आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो? आप कहोगे ऑफ कोर्स, बीमार थोड़ी पड़ना है। बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल, क्या आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हो? अब आप कहोगे मेंटल हेल्थ, इसका ख्याल कैसे रखा जाता है? एग्जैक्टली, मेंटल हेल्थ क्या है और उसका ख्याल कैसे रखा जाए, ऐसे कई सवालों के जवाब लेकर आ रहा है परीक्षा पे चर्चा 2025 का ये एपिसोड। अच्छा, इस सीरीज की इंस्पिरेशन हमें मिली हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी एक बड़ी कमाल की सिंपल बट पावरफुल बुक एग्जाम वॉरियर्स से। अच्छा, आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनके पास एक कमाल की सुपर पावर है, द पावर टू एक्सप्रेस। ये पहली पब्लिक फिगर बनी हिंदुस्तान की जिन्होंने मेंटल हेल्थ को लेकर खुल के बात की, और उसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान के घर घर में मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता पैदा हो गई। बॉयज एंड गर्ल्स, जॉइन योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम द वन एंड द ओनली दीपिका पादुकोण। वेलकम दीपिका, वेलकम। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा पे चर्चा 2025 में। सो दीपिका, शुरुआत करते हैं आपके बचपन के दिनों से। एक बहुत ही मिसलीडिंग फोटो है। मैं बहुत ही नॉटी बच्ची थी। अभी भी मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि यू नेवर फाइंड दीपिका एट ग्राउंड लेवल। मैं हमेशा सोफास पे, टेबल्स पे, चेयर पे चढ़ के कूदना, आउटडोर स्पोर्ट्स, मुझे हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट था।
बट आई थिंक आई एम ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट कि एक वक्त ऐसे आया जब मुझे रियलाइज हुआ कि मार्क्स एंड योर रिजल्ट्स आर नॉट एवरीथिंग। एंड आई थिंक एक माहौल था मेरे स्कूल में, एंड जब भी टीचर्स डे का कुछ डांस के लिए प्रैक्टिस करना था या फैशन शो या स्पोर्ट्स डे, I used to get very excited about those things, you know. I think the other thing is मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डाला टू ब्रिंग गुड मार्क्स। तो मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों का जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करना बहुत जरूरी है। मे बी देयर इंटरेस्ट लाइज इन समथिंग एल्स एंड दैट इज ऑल्सो ओके। कमाल की बात बताइए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितनी क्रिटिकल है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने एग्जाम वॉरियर्स किताब में कहते हैं खेलोगे तो खिलोगे। बिल्कुल। तो ये खेल का जो है रोल आपकी पर्सनालिटी में भी कैसे आना शुरू हुआ? आपने कब रियलाइज किया कि इट इज हेल्पिंग यू ब्लूम? इन चीजों का जो इम्पोर्टेंस है, जब बच्चे होते हैं हम उसका इम्पोर्टेंस रियलाइज नहीं करते। अब जब मैं बड़ी हुई हूँ, आई थिंक अबाउट, अच्छा मैं अपार्टमेंट में बड़ी हुई, अच्छा मेरे बिल्डिंग में दोस्त थे। सो यू डोंट रियलाइज एज अ चाइल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग फ्रेंड्स या एक कम्युनिटी में ग्रो अप होना। या सो इट ऑल्सो अलाउड मी टू जस्ट फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल, टेक माई माइंड ऑफ। कभी कभी हम बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, जैसे मैं मैथ्स में बिल्कुल वीक थी और आज भी हूँ, तो बिफोर द मैथ एग्जाम आई वुड गेट वेरी स्ट्रेस्ड। तो कुछ उस चीज से एक छोटा सा ब्रेक लेना, माइंड को रिलैक्स करना, एंड देन एड्रेस इट अगेन। समटाइम्स यू जस्ट हैव अ फ्रेश टेक ऑन व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग, राइट? सो आई थिंक ये सवाल ये है कि स्ट्रेस फील करना बहुत ही नेचुरल चीज है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाउ वी हैंडल द स्ट्रेस आई थिंक इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है रिलेटेड टू योर एग्जाम्स। एग्जाम के रिजल्ट्स हो या एग्जाम की जो प्रेपरेशन है। कभी मैं एक चैप्टर खोलती हूँ तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी कि एक बार पढ़ के मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा ये चीज। ये हमारे साथ भी होता है ना। एंड देन आई रियलाइज्ड, काश मैं 10 दिन पहले स्टार्ट करती, काश मैं उसी चैप्टर को 2 और बार पढ़ती, तो मे बी आई वुड हैव बीन स्लाइटली बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट चैप्टर। और फिर तब बुरा लगता है जब मैं एग्जाम में जाके उसी चैप्टर पे एक सवाल आता है एंड आई एम लाइक, अरे यार काश मैं और थोड़ा प्रिपेयर करती, एंड नॉट लास्ट मिनट, काश मैं थोड़ा पहले से प्रिपेयर करती। बट एट द सेम टाइम पेशेंस is an extremely important virtue. I think you can only do what is in your control. हम prepare कर सकते हैं, we can sleep well, we can hydrate well, हम exercise करेंगे, हम meditation करेंगे। तो अब दीपिका बात करते हैं उस मोमेंट की जब आपको ये रियलाइज हुआ कि शायद मुझे डिप्रेशन। स्कूल के बाद स्पोर्ट्स के बाद मॉडलिंग के बाद एक्टिंग, और मैं काम करती गई। और एक दिन ऐसे आया 2014 में जी, जब एक दिन मैं बेहोश हो गई, और कुछ दिनों के बाद रियलाइज हुआ कि मुझे डिप्रेशन हुआ था। एक डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो हम देख नहीं सकते, एक बहुत ही इनविजिबल चीज है। हो सकता है अभी कि हमारे बीच कुछ लोग हैं जो एंजाइटी फील कर रहे हैं या डिप्रेशन फील कर रहे हैं, और हमको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज ऊपर से मैं स्माइल कर रही हूँ, मैं सबके साथ हाय हेलो बोल रही हूँ। और ये आपने किसी से शेयर किया? बहुत टाइम के लिए मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं अकेली रहती थी तब बॉम्बे में। और फिर मेरी मम्मी आई थी बॉम्बे मुझे मिलने, और कुछ हफ्ते वो मेरे साथ रह रही थी। और जिस दिन वो लोग जा रहे थे वापस बैंगलोर, तो मैं रोने लगी। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, कुछ काम पे कुछ हुआ? एंड आई सेड नहीं, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, आई एम जस्ट फीलिंग कंप्लीटली हेल्पलेस एंड होपलेस, एंड मुझे जीना ही नहीं है अब। तो आई वॉज वेरी लकी इन दैट मोमेंट दैट माई मदर रियलाइज्ड, और उन्होंने कहा कि एक साइकोलॉजिस्ट को फोन करते हैं। हमारे देश में बहुत स्टिग्मा होता था मेंटल इलनेस को लेकर, मुझे कैसे हो सकता है, कि मुझे कैसे हो सकता है, या अगर मुझे हुआ भी है तो हम किसी को बताएंगे नहीं। जैसे ही मैं बात करने लगी इस इलनेस के बारे में, आई स्टार्टेड फीलिंग सो फ्री, सो लाइट। और वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेके,
डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कभी भी किसी को भी हो सकता है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके किताब एग्जाम वॉरियर्स में भी लिखा है, एक्सप्रेस नेवर सप्रेस। It really takes off a lot of weight off your shoulders. And when you're preparing for exams in particular, you start feeling better. You feel like, अच्छा अब मैं एग्जाम पे मैं फोकस कर सकती हूँ क्योंकि मेरा जो इशू है मैं उसके बारे में मैंने बात किया है, and you're able to just focus and live a healthier, better life. तो देखो कितनी कमाल की सुपर पावर बता दी, द पावर टू एक्सप्रेस। और उसका नतीजा क्या हुआ, एक ऐसी फाउंडेशन शुरू हो गई जिसके 10 साल हो गए। और इनफैक्ट वी हैव अ वेरी स्पेशल वीडियो। दीपिका, हम चाहते हैं वो वीडियो हम प्ले करें। Okay. Celebrating 10 years of your foundation. The reason why I chose to speak up, I think, is because if in doing so, if I can impact even one life or save that one person from taking their life because they're so down and out, I think we've achieved what we want. आप दीपिका से सवाल पूछ सकते हो। रेडी? पहला क्वेश्चन कौन पूछेगा? ओके, आप पूछो। मेरा प्रश्न ये है कि परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए हमारे अभिभावक, हमारे अध्यापक हम पर बहुत दबाव डालते हैं, तो कृपया आप बताएं कि हम इन दबावों का सामना कैसे कर सकते हैं। I think focus on the things that you can control. जैसे am I prepared or not? वो मेरे कंट्रोल में है। Feeling stressed the night before, talk to your parents about it. या अपने टीचर से बात करो। Identifying the cause of your stress and expressing it with somebody who you trust. That could be one of the ways of dealing with stress. क्या मैं मेडिटेशन या थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। अगला सवाल किसका है? My question to you is that what are your mantras of success which I can follow? I think couple of things. One is clarity कि मुझे क्या करना है लाइफ में। दूसरी बात ये है कि वो conviction होना कि I am capable of doing this. मैं कर सकती हूँ। Will I fail along the way? Will I